Hello, my dear friends. Welcome all of you in my JEE mathematics classes. Topic is binomial theorem. Here there is a question. Let alpha equal to summation k equal to 0 to n nck whole square upon k plus 1 and beta equal to nck into nck plus 1 upon k plus 2 k plus 2 if 5 alpha equal to 6 beta then n is equal to ये क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेई मेन 2024। अल्फा का मान हमें दिया हुआ है समेशन के इक्वल टू 0 टू एन एन सी के होल स्क्वायर अपॉन के प्लस 1 और बीटा का मान दिया है एन सी के इंटू एन सी के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2। यदि 5 अल्फा बराबर 6 बीटा देन एन इज इक्वल टू, तो एन का मान क्या होगा? वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम with our basic knowledge. Solution. अल्फा इक्वल टू के का मान 0 हम डालेंगे तो एन सी 0 इंटू एन सी 0 अपॉन 1 एन सी 0 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एन सी 0 इंटू एन सी 0 अपॉन 1 प्लस के का मान 2 1 तो एन सी 1 इंटू एन सी 1 अपॉन 2 के का मान 2 0 के बाद 1 डालें 2 तो एन सी 2 इंटू एन सी 2 अपॉन 3। दिस इज अप टू के का मान एन सी एन इंटू एन सी एन अपॉन एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये अल्फा का मान हुआ। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं 1 बाई आर प्लस 1 एन सी आर इक्वल टू एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। इस फार्मूला का हम पिछले वीडियो में भी यूज किए हैं। 1 बाई आर प्लस 1 एन सी आर इक्वल टू 1 बाई एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। तो नाउ दिस इज अल्फा इक्वल टू एन सी 0 1 बाई आर प्लस 1 आर इज 0 0 प्लस 1 एन सी 0 एन सी आर। तो दिस इज 1 बाई एन प्लस 1 into NC0 n plus 1 C1. Similarly, 1 NCR r plus 1 plus 1 from this formula 1 by 1 plus 1 NC1 equal to 1 by n plus 1 n plus 1 C1 plus 1. So 1 by n plus 1 into NC1 n plus 1 C2 up to 1 by n plus 1 NCN into n plus 1 CN plus 1। इसमें हम लोग 1 by n plus 1 कॉमन ले लेंगे। कोष्ठ का अंदर आएगा NC0 इंटू एन प्लस 1 C1 प्लस एन C2 एन प्लस 1 C2 अप टू
Now NCN n प्लस 1 Cn प्लस 1, ये अल्फा का मान हुआ। इसी प्रकार बीटा का मान हम लिखेंगे, बीटा इक्वल टू हेयर समेशन k इक्वल टू 0 टू n, समेशन k इक्वल टू 0 टू n। बीटा इक्वल टू NC0 NC1 अपॉन 2 प्लस NC1 इंटू NC2 अपॉन 3, NC2 इंटू NC3 अपॉन 4 up to NCN into NCN plus 1 upon N plus 2। यहाँ भी हम फार्मूला से लिखेंगे 1/n plus 1 कॉमन आ जाएगा, NC0 into n plus 1 C2, NC1 into n plus 1 C3, NC2 into n plus 1 C4 up to 1/n plus 1 NCN into n plus 1 Cn plus 2। ये मेरा बीटा का वैल्यू हुआ। इसका मान n प्लस 1 Cn होगा और इसका वैल्यू, इसका मान 2n प्लस 1 Cn होगा, इसका वैल्यू 2n प्लस 1 Cn माइनस 1 होगा। इस मान को हम लोग निकालते हैं। अल्फा विल बी इक्वल टू 1/n प्लस 1 2n प्लस 1 Cn। इसका वैल्यू जो होगा ब्रैकेट में जो आपको यहाँ पर है NC0 इंटू n प्लस 1 C1 प्लस NC2 इंटू NC1 इंटू n प्लस 1 C2 अप टू NCN n प्लस 1 Cn प्लस 1, इसका वैल्यू होगा 2n प्लस 1 Cn एंड बीटा इक्वल टू 1/n प्लस 1 2n प्लस 1 Cn माइनस 1, 2n प्लस 1 Cn माइनस 1। अब क्वेश्चन है कि सर इसका मान कैसे इसके बराबर होगा? तो एंड हमें दिया हुआ है 5 अल्फा इक्वल टू 6 बीटा। This is alpha equal to, now 1 plus x power n into 1 plus x power 1/x power n plus 1, 1 plus x power n into 1 plus 1/x power n plus 1 equal to 1 plus x power n into 1 plus x power n plus 1 divided by
x power n plus 1. This is equal to 1 plus x power 2n plus 1 by x power n plus 1. अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं. Implies NC0, NC1x, NC2x square, NC3x cube up to NCn x power n into NC0, NC1 1 by x, n plus 1, sorry, n plus 1 C0, n plus 1 C1 into 1 by x, n plus 1 C2 into 1 by x square up to n plus 1 Cn plus 1 1 by x power n plus 1. This is expansion of LHS equal to 1 by x power n plus 1, 2n plus 1 C0, 2n plus 1 C1 x, 2n plus 1 C2 x square up to 2n plus 1 Cn x power n up to 2n plus 1 C2n plus 1 x power 2n plus 1. This is the expansion. अब आप गौर से देखिए, NC0 into n plus 1 C1, NC0 into n plus 1 C1 into 1 by x, NC1x into n plus 1 C2 1 by x square, n plus 1 NC1 into n plus 1 C2 x into 1 by x square 1 by x. The equating coefficient of 1 by x both sides, we will get value of NC0 n plus C1 plus NC1 into n plus C2 equal to 2n plus 1 Cn xn by xn plus 1 by x. So this is equal to 2n plus 1 Cn. Equating coefficient of 1 by x square, we will get NC0 n plus 1 C2, NC0 n plus 1 C2 into 1 by x square, NC1 into NC2, NC1 into NC2, NC3, NC1 into n plus 1 C2. This is C3, sorry, yeah, here. NC0 n plus 1 C2, NC0 n plus 1 C2 1 by x square, NC1 into n plus 1 C3 x into 1 by x cube 1 by x square. So this is coefficient of 1 by x square. Equating coefficient of 1 by x square, we will get 2n plus 1 Cn minus 1 x power n minus 1 into 1 by xn plus 1. After equating coefficient of 1 by x, we will get value of this, and equating coefficient of 1 by x square, we will get the value of this. So this value is 2n plus 1 Cn and 2n plus 1 Cn minus 1. इस प्रकार हम इस वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं. ये आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए बताया कि किस तरीके से इसका मान आएगा. ये मान इस वैल्यू के बराबर होगा. Now
5 अल्फा इक्वल टू 6 बीटा, अल्फा बाई बीटा इक्वल टू 6 बाई 5 implies अल्फा 1 बाई n प्लस 1 2n प्लस 1 cn अपॉन 1 बाई n प्लस 1 2n प्लस 1 cn माइनस 1 इक्वल टू 6 अपॉन 5. Now 1 by n plus 1 cancel. Factorial 2n plus 1 upon factorial n plus 1 upon factorial 2n plus 1 upon factorial n minus 1 into factorial 2n plus 1 minus n plus 1 n plus 1 2n plus 1 minus n plus 1 n plus 2 n plus 2 equal to 6 upon 5 implies factorial 2n plus 1 upon factorial n 2n plus 1 factorial n plus 1 into factorial n minus 1 factorial n minus 1 into factorial n plus 2 upon factorial 2n plus 1 equal to 6 upon 5. Now factorial 2n plus 1, factorial 2n plus 1 cancel. From factorial n minus 1, factorial n factorial n plus 1, factorial n plus 2, n plus 2 implies n plus 2 upon n equal to 6 by 5 or 6n equal to 5n plus 10 5n plus 10 implies 6n minus 5n equal to 10 implies n बराबर 10 n का मान हमें 10 आया. यही हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था. इसमें कुछ नहीं था, अल्फा को मैं एक्सपेंड किया और फार्मूला लगाया. 1 बाई एन प्लस 1 कॉमन आ गया और कोष्टक में जो आया उसको मैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट से एक अलग क्वेश्चंस हैं दोनों, वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं. उससे एक का मान हमें निकल गया 2n प्लस 1 cn और दूसरे बीटा में निकल गया 2n प्लस 1 cn माइनस 1. कोफिशिएंट इक्वेट किए, एक 1 बाई एक्स और एक 1 बाई एक्स स्क्वायर का. तो अल्फा में 1 बाई एक्स का कोफिशिएंट दोनों इक्वेट किया LHS और RHS में, और बीटा में 1 बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हमें ज्ञात हो गया. जब अल्फा और बीटा का मान ज्ञात हो गया, हमें दिया हुआ था 5 अल्फा बराबर 6 बीटा, अल्फा बाई बीटा इक्वल टू 6 बाई 5. अल्फा और बीटा का मान रख दिया, 1 बाई एन प्लस 1 कट गए, 2n प्लस 1 cn फैक्टोरियल 2n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 NCR का फार्मूला फैक्टोरियल 2n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 n प्लस 2. फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवीजन इनटू लिया, रेसिप्रोकल में लिखा. फैक्टोरियल n माइनस 1 से फैक्टोरियल n कटेगा, n बचेगा. फैक्टोरियल 2n प्लस 1 फैक्टोरियल 2n प्लस कैंसिल हुआ. फैक्टोरियल n प्लस 1 से फैक्टोरियल n प्लस 2 कैंसिल होगा तो n प्लस 2 बचेगा. n प्लस 2 बाई n इक्वल टू 6 बाई 5. 6n इक्वल टू 5n प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6n माइनस 5n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10, तो n का मान हुआ 10. तो कुछ चीज़ें हम कंपटीशन के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ रिजल्ट हमें याद रखना पड़ता है. यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता जिसका वैल्यू ये हुआ, इसका वैल्यू ये हुआ, तो आपको समझ में नहीं आया था. इसीलिए थोड़ा मैं कोशिश किया कि कैसे इसका वैल्यू निकाल के यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. उम्मीद है मेरा ये छोटा छोटा वीडियो आपके जेईई मेन की प्रिपरेशन की तैयारी में बहुत मदद करेगा. खुद लाभ लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आप दोस्तों को भी लाभ दीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद.